Good evening everyone, good evening to all of you. Most welcome to your own channel Bright On। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ MCQs ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ MCQs ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ठीक है जी, इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਾਂ ਵੈਡਨਸਡੇ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਏਗੀ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 76 ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ, ਇਟਸ ਨਾਓ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 76 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਦੈਨ ਦੱਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ n+3 ਐਂਡ n+nc3 ਪਲੱਸ nc4 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ, n+1c3 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ n+1c4 ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, n+1c3 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, n+1c4 ਬਾਈ n+1c3। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ 1 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੀ, n ਦੀ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ n+1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, n+1 - 4 मतलब n-3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, n+1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, n-2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ n-2/4 ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਇੱਥੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ n ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, A ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 77 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ 4 ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ M ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ T ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ 2 ਸੇਮ ਵਰਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ 2 ਸੇਮ ਵਰਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਵਰਡ ਲੈ ਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 4 ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਰਡਸ ਲੈ ਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਊਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
है ना, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो तीसरा केस की बनता है कि मैं सारे के सारे वर्ड्स ही इदा दे लै ला जिहड़े कि होणगे डिफरेंट होणगे, मतलब सेम काइंड के नहीं होणगे। हुण इन्हां तिन्नां दे एडिशन नूं ही आपां की कहांगे कि मेरे कोल टोटल जिहड़े वेज ने वो मेरे कोल आंसर आ जाऊगा। हुण जेकर मैं कह रही हाँ कि दोनों ही मेरे कोल ग्रुप बन रहे हैं तो टोटल मेरे कोल कितने लैटर होणगे 4 होणगे, और नीचे दोनों मेरे कोल की होणगे सेम टाइप के, मतलब सेम ग्रुप के होणगे। ठीक है जी। अगर आप ये गल करिए तो टोटल मेरे को लैटर्स किन्ने ने 4 लैटर्स ने। ठीक है। और ये आप किन्ने डिसाइड कर रहे हैं 2 डिसाइड कर रहे हैं। और जो बाकी के 2 लैटर्स रह गए वो 2 लैटर्स किमें चूज़ करोगे तुसी, बाकी के 2 लैटर्स जोड़े रह गए वो किधर चूज़ करोगे। देखो पीछे किन्ने लैटर्स रह गए अपने को, जेकर आप ध्यान नाल देखिए मेरे को देखो एम चला गया, टी चला गया, क्योंकि इन्हों की अरेंजमेंट तो ये रह गई ना। ये मेरे को टोटल किन्ने केसेस बनते पे ने, ये मेरे को टोटल 3 केसेस बनते पे ने, है ना। तो मतलब मैं 3 दे विचों कोई भी एक ग्रुप जो है वो चूज़ करांगी। ठीक है। इंटू जेडे आह मैं 2 डिफरेंट वर्ड लै रही हूँ, मेरे को बाकी किन्ने लैटर्स ने, मेरे को बाकी लैटर्स हैगे ने 3, उस तो बाद अगर आप गल करिए 4 5 6 7, है ना। तो मेरे को बाकी लैटर्स हैगे ने 7, तो इन्होंने 7 के विचों मैं 2 सिलेक्ट कर रही हूँ। और ये चारों ही डिफरेंट ने, चारों ही डिफरेंट ने, मतलब आप की कर रहे हैं 8 के विचों 4 लैटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने आपस के भी अरेंजमेंट होंगे कि किहड़ा लैटर अगे आएगा किहड़ा लैटर पिछे आएगा। तो इस तरीके नाल करके अपने को यह 3 अरेंजमेंट्स बन गई ने। कुछ नहीं करना, इन्होंने 3 की एडिशन करनी है तो थोड़ा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं इत्थे डायरैक्ट टिक कर रही हूँ कि अपना आंसर है किहड़ा, अपना आंसर थोड़ा कैलकुलेशन करने तो बाद डी ऑप्शन आएगा। ठीक है जी। चलो इतने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन के देखो जी की दिता होया। क्वेश्चन नंबर 78 के दिता हुआ इन हाउ मैनी वेज 5 रेड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है जी। कितनी बॉल्स ने गया इतने रेड 5 ने गया और 4 वाइट बॉल्स ने गया। बॉल्स भी ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, एक बैग के निकालियां जांदियां ने। उस बैग के कितनियां ने 10 रेड बॉल्स ने 8 वाइट बॉल्स ने, मतलब एक बैग जिस 10 रेड बॉल्स ने और 8 वाइट बॉल्स ने, वो 5 रेड तो 4 वाइट बॉल्स कढ़नियां ने। हुण जिहड़ियां तुसीं 5 बॉल्स कढ़ोगे वो किहदे विच कढ़ोगे, 10 दे विचों कढ़ोगे तो ये तो क्लीयर है कि 10 से 5। और जिहड़ियां 4 वाइट बॉल्स कढ़ोगे वो किहदे विचों कढ़ोगे, 8 दे विचों कढ़ोगे तो 8 से 4, कुछ नहीं, बस यही अपना आंसर है। तो आई थिंक सो इट इज़ वेरी ईजी कि मेरा आंसर कितना आ जाता है, बी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अगे आ जाता है अपने को क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन देखो जी की दिता हुआ है। देयर आर 15 persons, हाउ मैनी persons आर देयर, 15 persons इन अ पार्टी एंड ईच पर्सन शेक हैंड विद अदर। कहते 15 persons है, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन ने हैंड शेक करता है। तो हाउ मैनी वेज, तो हैंड शेक किन्ने पर्सन का होंगे, 2 ही पर्सन का होंगे। 3 पर्सन कट्ठे हैंड शेक करते देखिए आप कदे नहीं। तो है किन्ने टोटल 15 C2, दैट्स वेरी ईजी। तो कितना आंसर आ गया जी, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के उपर। क्वेश्चन नंबर 80 देखो जी आपको की दिता हुआ है NC5, यदा मतलब की है, यदा मतलब है NC5, और उस तो बाद की दिता हुआ है NC6। ये कहते ग्रेटर दैन है N+1 C5 तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, है ना। तो इन्होंने दोनों को मिला के मेरे को कितना बन जाएगा NC1 C6। ठीक है। इनू मैं डिनोमिनेटर के NC1 C5 लिख ली है, और ग्रेटर दैन कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके थोड़े को की रह जाएगा, देखो N+1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर के 6 फैक्टोरियल और N-5 फैक्टोरियल, है ना। और नीचे मेरे को बन गया N+1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और N-4 फैक्टोरियल। ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग N-6 - 1, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं, थोड़े को जस्ट इन्नी चीज़ रह जानी है, कि रह जानी है, एक तो थोड़े को N-4 बचेगा, है ना, इसमें सॉल्व करके, और एक थोड़े को 6 बनेगा, इसमें सॉल्व करके बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 1। और इतों N की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर दैन 10 आ गई। तो देख लो जी कि ऑप्शन राइट है, ये बी ऑप्शन राइट है ना। सो क्लीयर है कि अपने को विच इज़ द राइट आंसर, N ग्रेटर दैन 10 बी। अच्छा अपने N ओके अपने N फाइंड करना है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर N। तो इतने 10 नहीं आएगा, 10 तो ग्रेटर है वैल्यू। अगर 10 तो ग्रेटर है वैल्यू तो अपने को 10 तो वैल्यू सब तो छोटी ग्रेटर केड़ी आ जाती है, 11 आ जाती है। दे आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट, तो मतलब ए ऑप्शन इज़ राइट है। ठीक है। चलो इतने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 ਤੁਹਾਡੇ सामने आ, ये देखो की दिता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 के दिता हुआ द डिजिट आ सारे डिजिट ने आर रिटन इन एवरी पॉसिबल ऑर्डर। कहते उन्होंने किवें भी तुसी लिख सकते हो, द नंबर ऑफ द नंबर्स ग्रेटर दैन, कहते वो नंबर की होना चाहिए है इस नंबर तो ग्रेटर होना चाहिए है। ठीक है। अगर इस नंबर तो ग्रेटर होना चाहिए है तो तुसी देख लो हुण किस तरीके नाल तुसी इसनूं लिख सकते हो, हाउ मैनी वेज आर देयर।
हाँ जी, तो किवें करांगे इस क्वेश्चन को, देखो जल्दी जल्दी दसो। हुण अगर नंबर अपना इस तो ग्रेटर होना चाहिए है तो पहली गल तो नंबर किन्ने डिजिट का होएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर होएगा। ठीक है, अगर थोड़े कोल 5 डिजिट का नंबर है तो एक चीज़ तो क्लीयर है कि जो थोड़ा नंबर है उसके फस्ट प्लेस के कुछ भी आ सकता है, बट वो नंबर 5 तो ग्रेटर होना चाहिए है। फस्ट प्लेस के जो नंबर होएगा वो 5 तो ग्रेटर होएगा। ठीक है, या फिर तुम ये कह सकते हो 3 4 5 आ दोनों केसिस बनते हैं। अगर तो आप फस्ट प्लेस के उपर 5 ही रखते हैं है ना, 5 तो छोटा तो होना नहीं चाहिए। अगर तुम फस्ट प्लेस के उपर 5 ही रखते हो तो बाकी जो अरेंजमेंट्स लैके चलते हो थोड़े को देखो किन्ने वेज हो जाते हैं, तो 3 वेज हो जाते हैं। रुको आप इसमें करते हैं। हाँ जी, इतने किन्ने वेज हो जाते हैं, 3 वेज हो जाते हैं, क्योंकि नंबर थोड़े को 4 और 5 के इक्वल नहीं आना चाहिए। नंबर थोड़े को 4 या 5 नहीं होना चाहिए, उस तो ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। और सैकेंड नंबर थोड़े को कुछ भी हो सकता, जो तुम आ नंबर ही ग्रेटर दैन लै लिया, फिर सैकेंड नंबर तो कुछ भी आ जाए है ना। दैन किन्ने भी वेज इस बन सकते हैं। ठीक है, ये तो होमवर्क है, इसका जो आंसर है तुम कमेंट सैक्शन के करोगे, क्योंकि इदा के क्वेश्चन आप बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, सिमिलरली एक होर भी बनेगा, 2 केसेस बननगे और दोनों का तुम करोगे एडिशन करोगे, सिंपल नथिंग एल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 82 देखो ये दिता होया आपानू, इस आपानू पूछा होया 6 आइडेंटिकल कॉइन्स आर अरेंज इन अ रो। कहते 6 आइडेंटिकल कॉइन्स नूं तुसीं 6 कॉइन्स ने उन्होंने एक रो के की कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ हैड्स। कहते वो दसो किन्ने वेज के ट्रायल है तुसीं करोगे टेल हैड के इक्वल आएगा है ना। तो हुण एक चीज़ तो क्लीयर है कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ हो सकता है, हैड आ सकता है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ सकता है, टेल आ सकता है। तो जेकर तुसीं टॉस कर रहे हो, जेकर तुसीं टॉस कर रहे हो किन्ने कॉइन्स नूं 6 कॉइन्स नूं, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की पॉसिबिलिटी बनती है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हो सकता है 3 बारी हैड आवे 3 बारी टेल आवे है ना। 6 कॉइन्स नूं टॉस कर रहे हो तो प्रॉपर अगर ग्रुप्स बनाने की कोशिश करिए आप तो 3-3 के ग्रुप्स बनते हैं। तो हुण जेकर अपने को ग्रुपिंग की गल हो रही है तो अपने को की बन जाती है, फिर वेज नंबर ऑफ वेज मेरे को की होंगे, यही होंगे। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 6 × 5 × 4 ओवर 6। सॉल्व किया कितना आ गया जी 20 आ गया, विच इज़ राइट ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड प्राइजेस कैन गिवन टू 5 कॉम्पीटिटर्स। ठीक है, 5 कॉम्पीटिटर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फर्स्ट सैकेंड और थर्ड प्राइज़ देना है तो किन्ने नंबर ऑफ वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 कॉम्पीटिटर्स ने बट प्राइज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ने। तो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ फर्स्ट पोजीशन के उपर आया वो 5 कॉम्पीटिटर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी एक बच्चा हो सकता है। तो मतलब उसके लिए किन्ने वेज हो गए, उसके लिए 5 वेज हो गए, 5 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल फॉर द फर्स्ट प्राइज़। अगर एक बच्चा फर्स्ट प्राइज़ लै लेंदा है तो ओबवियसली वो सैकेंड थोड़ी आएगा, इदा थोड़ी है कि एक बच्चा फर्स्ट भी आ गया, वही बच्चा सैकेंड भी आ गया, वही बच्चा थर्ड भी आ गया। तो इतने क्लीयर है कि इदा के केसेस में आप खुद अपना दिमाग लगाना होंगे कि रेपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो ये अपने को सैकेंड के किन्ने बच्चे रह गए, फिर पिछे 4 रह गए, अगले किन्ने रह जाएंगे 3 रह जाएंगे। तो मतलब मेरे को आंसर कितना आ गया 60, दैट इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 के देखो कि दिता है हाउ मैनी वर्ड्स, आप कलर थोड़ा चेंज करिए, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मड। कहते किन्ने वर्ड्स ने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कि तो बनाने ने आप क्रियोसिटी तो। ठीक है, तुम इतने एक वर्ड देख पा रहे हो क्रियोसिटी, जिसके अगर आप गल करिए कि जोड़े आप वर्ड्स बनाने हैं वह भी जो स्टार्टिंग लेटर है वो सी ही होना चाहिए और जो लास्ट लेटर है वो वाई ही होना चाहिए। सो एक गल तो क्लीयर है कि सी तो वाई तो अपने को फिक्स ने। अगर सी तो वाई फिक्स ने तो आप काउंट करिए किन्ने लैटर्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 लैटर्स ने। 8 लैटर्स के विचों 2 लैटर्स अपने को फिक्स ने, तो पिछे किन्ने लैटर्स बच गए 6 लैटर्स बच गए। तो हुण जेकर 6 लैटर बच गए तो 6 लैटर की अरेंजमेंट कितनी होएगी 6 फैक्टोरियल होएगी। ठीक है, तो इतने कितना कि ऑप्शन सही हो जाती है, फिर ए ऑप्शन सही हो जाती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना, कि अपने को जी सी फिक्स है वाई फिक्स है तो 6 लैटर की अरेंजमेंट कितनी होएगी 6 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के उपर। क्वेश्चन नंबर 85 देखो जी की दिता होया, इस क्वेश्चन च आपां नूं की पूछ लिया, कहते द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड बाय द यूजिंग। कहते सम ऑफ 4 डिजिट नंबर करना है जोड़ा कि इन्होंने डिजिट्स नूं यूज़ करके बनाया जाएगा। रेपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रेपीटेशन अलाउड नहीं है। हुण अपने को जिन्ने भी डिजिट्स बननगे उन्हां सब दा आपां ने सम फाइंड करना है। ठीक है, मान लो मेरे को कोई भी 4 डिजिट का सम बनता है, इत्थे तुहाडे कोल 2 आ सकदा है। ठीक है,
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 8 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵੇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਤਲਬ 6 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 10 20 20 120 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ 120 ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ 100 ਪਲੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 120 ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, 120 ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ, ਸੌਰੀ 120 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ 1 + 10 ਸਕੁਅਰ + 100 10 ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। +1000, ठीक है। तो इन्ने प्लेसिस ऊपर जाऊगा ये, बस फिर इन्हों की एडिशन तो मल्टीप्लाई कितना बन गया, 4 टाइम्स बन गया अपने को, ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई कि करनी है, 120 नाल करनी है। तो किहड़ी ऑप्शन सही हो जाती है, ये ऑप्शन अपने को सही हो जाती है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 85। दिस इज क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखो जी अपने को की है, ये देखो अपन द नंबर ऑफ द वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लैटर्स, जोड़ा कि इन्होंने लैटर्स तो मिलकर बनया हुआ है। इफ 2 कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट अकर टुगैदर, जेकर 2 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे नहीं आते। अगर 2 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे नहीं आते तो पहला तो अरेंजमेंट्स कर लो कि ये वोवल्स किन्ने ने। आ मेरे को वोवल है, आ वोवल है, 3 वोवल्स ने, 3 वोवल्स ने। तो जेकर आप ध्यान नाल देखिए 3 वोवल्स ने, कॉन्सोनेंट्स कित्थे आ सकते हैं, इत्थे आ सकते हैं, इत्थे आ सकता है, इत्थे आ सकता है, इत्थे आ सकता है। तो 4 कॉन्सोनेंट्स की बनती है, जगह बनती है ना। अगर आप ध्यान नाल देखिए 4 कॉन्सोनेंट्स की जगह बनती है, तो वही गल है फिर अपने को किन्ने वेज हो गए, 4 फैक्टोरियल हो गए। तो क्लीयर है कि आंसर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लीयर है, कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखो जी की दिता होया है, ये आपको पूछा होया इन हाउ मैनी वेज n books can be arranged in a row so that 2 specific books are not together। 2 specific books ने जड़ियाँ हो together नहीं होनिया चाहिए। तुसी एक रो दे विच n books नू अरेंज करना है, तो ये तुसी हमेशा याद रखोगे एज अ मैथड, एज अ फॉर्मूला, एज कुछ भी तुसी कह सकते हो है ना। कि जेकर तुसी सारियां n बुक्स की गल कर रहे हो, तो n बुक्स की टोटल वेज किन्ने बन गए, मेरे को n फैक्टोरियल बन गए। ये तो मेरे को आ गए टोटल वेज, ठीक है। अगर आप 2 स्पैसीफिक बुक्स की गल कर रहे हैं, मान लो 2 स्पैसीफिक बुक्स हैगियां ने, आप उन्होंने एक ग्रुप बना लेने है ना, कि एक मेरे को हिंदी की बुक है, एक पंजाबी की बुक है। 2 स्पैसीफिक बुक्स ने इकट्ठियां नहीं आनिया चाहिए। तो पहले मैं इन्होंने दोनों के इकट्ठे आने की कढ़ लैनी हाँ। इकट्ठे आने की की होएगी, टोटल हुण मेरे को किन्ने बन गए, n-1 वेज बन गए। इन्होंने दोनों की आपस के विच अरेंजमेंट होगी विच इज़ 2 फैक्टोरियल है ना। ये तो है दोनों के इकट्ठे आने की, बट दे आर टॉकिंग अबाउट नॉट टुगैदर, भी टुगैदर नहीं होने चाहिए। अगर टुगैदर नहीं होने चाहिए तो टोटल वेज के विचों आ वाले वेज नूं आपां की कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, पीछे मेरे को रह गया n-2। सो देख लो कि ऑप्शन सही है, आई थिंक सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बी अपने को सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखो जी कि दिता हुआ है इन हाउ मैनी वेज, आई थिंक सो ये रिपीट हो गया, हाँ रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो भी अपने को राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 ये देखो जी कि दिता हुआ है इन हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी, कहते जो दिल्ली वर्ड तुम देख पा रहे हो, इस तो तुम किन्ने होर वर्ड्स बना सकते हो इफ एल जड़ा है वो मिडल के विच ही रहेगा, ठीक है। एल नूं आपां हिलाना नहीं है, अगर वो मिडल दे विच है तो मिडल दे विच ही रहूगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने सिर्फ 4 लैटर्स की अरेंजमेंट करनी है, ओनली 4 लैटर्स की अरेंजमेंट कर लो। किन्नी हो जाएगी 4 लैटर्स की अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किहदे इक्वल हुंदा है, 24 के इक्वल हुंदा है। अगर 24 के इक्वल हुंदा है तो किहड़ी ऑप्शन सही है, फिर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 दे विच देखो कि दिता होया है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 90 दे विच आपां नूं की दे दिता, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म
फ्रॉम द डिजिट। कहते ਜਿਹੜੇ ਆ डिजिट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1 2 3 4 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ डिजिट्स ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਡਿजिट ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ 4 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 3 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ डिजिट ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 डिजिट ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 डिजिट ਲਾਓਗੇ, ठीक है। अगर तुम 3 डिजिट का नंबर बनाने हो तो 4 के विच, अगर तुम 4 के 4 का बनाने हो तो 4C4, तो कि ऑप्शन सही होगी, फिर डी ऑप्शन सही होगी, कॉमन है ना। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 91st क्वेश्चन हैगा हुण तुहाडे कोल। देखो जी इसका आंसर की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 आपां नूं की दिता होया है, कहते एक सैट है, इस सैट दे विच आपां नूं की दिते हुए हैं 2n+1 एलीमेंट्स दिते हुए हैं। द नंबर ऑफ सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग एट मोस्ट एन एलीमेंट, ज़्यादा तो ज़्यादा एन एलीमेंट्स उस होने चाहिए ने। तो इसनूं तुसीं एज अ रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है। इसनूं प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, बट इसनूं डायरैक्ट एज अ रिजल्ट याद रखोगे तो सीधा आंसर है अपने को, दैट इज़ 2 पावर 2 है, ठीक है जी, ठीक है। बाकी इसनूं बायनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन देखो कि दिता होया 4 बसिस ने जड़ियाँ, ठीक है, कहते हो भोपाल तो गवालियर समथिंग है ना, इत्थे तक जांदियां ने। इफ अ मैन गोज़ फ्रॉम गवालियर टू भोपाल बाय अ बस एंड कम बैक फ्रॉम, मतलब वो जांदा भी बस नाल है, एक बस दे नाल जांदा और दूसरी बस दे नाल वापस आंदा। हुण नाउ दे मैंशन कि अनदर बस तो वापस आ रहा है, सेम बस तो वापस नहीं आ रहा। दैन हाउ मैनी टोटल वेज आर देयर, किन्ने टोटल वेज ने जिहड़े वो पॉसीबल हैगे, ठीक है। तो हुण देख लैंदे फिर अपने कोल किन्ने टोटल वेज बनते हैं। तो हुण देखो हुण हो सकता है जाण दे लई भी 4 बसिस हैगियां ने और अच्छा फिर आने के लिए भी 4 बसिस है है ना। तो देख लैंदे फिर किमें करना है इसनूं आपां। देखो ये 4 बसिस जाने के लिए ने, 4 बसिस आने के लिए ने। हुण जेकर वो जांदा है तो वो वास्ते किन्ने रस्ते हैगे हैं, 4 रस्ते हैगे, ठीक है जी। उन्होंने जाने के भी 4 रस्ते होंगे और वापस आने, क्योंकि वो अनदर बस तो वापस आ रहा है तो उन्होंने आने के लिए कितनी बसिस अवेलेबल होंगियां, 3 बसिस अवेलेबल होंगियां। सो वेरी ईजी, दैट इज़ ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 93 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि दिता होया ਤੁਹਾਨੂੰ इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है दैट इज़ NP4 ਤੁਹਾਨੂੰ दिता होया है 24 NC5 ਦੇ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है NP ਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है। NP ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि जिन्ना दिता होया n-4 फैक्टोरियल है ना, और सोल्व करना पैना दोनों जगह पे। आई विल सजेस्ट द कि जी n की वैल्यू है वो तुम पुट करके चेक कर लो बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करोगे तो ज़्यादा सही तरीके ना थोड़ा क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 10 पुट करके देख लो, 10 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा 10 9 8 7 दैट इज़ इक्वल टू 24 10 9 8 7 6 और नीचे मेरे को 5 4 3 2 1 जो कि पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो ये तो चीज़ क्लीयर है कि अपने को ए ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली तुम बाकी कोई भी ऑप्शन पुट करके देखोगे तो आंसर आ जाऊगा, दैट इज़ वेरी ईजी। ये हैगा बाय ऑप्शन बट आप कर लें, चलो बेसिक नाल कर लें, ठीक है। तो हम देखो अपने को NP4 का मतलब की है, NP4 का मतलब है n n-1 n-2 n-3 24। इतने इसनूं खोल लो n n-1 n-2 n-3 एंड n-4, ठीक है जी। डिवाइड बाय मेरे को कितना है 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। और n-5 फैक्टोरियल जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो 4 कॉलम्स ने जोड़े 4 चीज़ों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे को जो 120 है वो किस इक्वल आ जाएगा 24 × n-4 के इक्वल आ जाएगा। इसमें भी कैंसिल कर दो, 2 बच गया, 5 बन गया, 9 आ गई मेरे को n की वैल्यू। तो क्लीयर है कि n की वैल्यू कितनी होगी, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 के विच देखो कि दिता हुआ है 12 PR जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो R की वैल्यू आप फाइंड करनी है, हाँ जी। तो ये कुछ नहीं करना, सॉल्वेशन करनी है, ऑप्शनस के अकॉर्डिंग कर सकते हो तुम, ऑप्शनस में चक के पुट करना, ठीक है। नहीं फिर आप सिंपल सॉल्व तो कर ही लवेंगे, है ना। तो फिर देखो ये की करोगे, जो देखते हैं आप थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा के, अगर आप इन्हों दोनों देखिए
देखो अपन कितना दिता हुआ है 12PR दिता हुआ है, ठीक है जी। और इतने अगर आप ध्यान नाल देखिए बाय ऑप्शन कर लेने इसमें, ABCD पुट करके कर लेने जी। 7 पुट करते हैं तो मेरे को कितना बनता है 12P7 की इस इक्वल आता है 11P6 प्लस 6 इंटू 11P5, ठीक है। तो बाय ऑप्शन हो जाना है, ये थोड़ा होमवर्क हैगा तो ये तो हम आप ही करना पैना बाय ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ कैलकुलेशन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैलकुलेशन ही ਦਿੱਤੀ हुई है, ठीक है जी। परमुटेशन दी हुई है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ n ਤੇ r ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ जो है वो फाइंड करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ कि कितना होगा आंसर। देखो NPR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1680, ठीक है जी। NCR इसकी वैल्यू अपन कितनी दी हुई है 70। तो जेकर आप ध्यान नाल देखिए दोनों के विच जो रिलेशन होंदा वो रिलेशन की होंदा है। NPR का मतलब की है, NPR का मतलब है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। NCR का मतलब की होंदा है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बस ये r फैक्टोरियल होर ऐड हो जाता है। तो जेकर आप दोनों ध्यान नाल देखिए तो जो मेरे को 1680 है वो मेरे को 70 इंटू r फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आ गया है ना, 70 इंटू r फैक्टोरियल इक्वल आ गया। तो मेरे को r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई 1680 बाय 70, कैंसल कर दो, कैंसल करके थोड़े को जो है n फैक्टोरियल की सॉरी r फैक्टोरियल की इक्वल आ गया 24 की इक्वल आ गया। अगर आप ध्यान नाल देखिए r फैक्टोरियल 24 की इक्वल है तो मतलब r की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, r की वैल्यू आपको मिल गई, r की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। तो किसी भी ये पुट कर लो या ये पुट कर लो अपने को कि वैल्यू आ जानी है n की वैल्यू आ जानी है ना, परमुटेशन वाले कर लेने थोड़ा ईजीली हो जाऊगा। तो अपने को कितना हो जाऊगा देखो ये जो तुम r की वैल्यू पुट करते हो तो थोड़े को कितना रह जाता है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे को कितनी है 1680 इदा करके आप प्रॉपर मैंने वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो हूँ ये थोनों देखना पैना है कि मेरे को कि वैल्यू आती है, थोड़ा लंबा जा रहा है ना, ओके। तो फिर नंबर चूज करना पैना है कि जेकर तुम n की वैल्यू 7 लैने हो 8 लैने हो 4 लैने हो है ना, जेकर 8 7 6 और 5 5 30 42 एंड 50 थोड़ा लंबा चला गया है ना अपना क्वेश्चन, दैट इज n फैक्टोरियल की वैल्यू पता इन्होंने करके ओके की वैल्यू 55 होंगी है हाँ। तो इन्होंने करके आ जाएगा अपने को, तो मतलब n की वैल्यू की लैके चलांगे 8 लैके चलांगे, ठीक है। तो ये थोड़ा करके देखना पड़ेगा, n की वैल्यू 8 है r की वैल्यू 4 है, तो ये पुट कर दो तो मेरे को कितना आ जाएगा जी 69 इंटू 8 प्लस r फैक्टोरियल मतलब 24। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाइन इंटू 8 करांगे हो जाएगा अपने को 552 प्लस 24 का मतलब कितना आंसर आ गया मेरे को 576 विच इज़ बी ऑप्शन। क्लियर है जी। ये है अपने को क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखो कि दिता हुआ है NPR दिता हुआ है, NCR दिता हुआ है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। NPR और NCR का रिलेशन आप हुणी कट के हटे हाँ कि जेकर तुम NPR ओवर NCR कटोगे तो मेरे को कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा दोनों डिवाइड करके, ठीक है। और बिल्कुल दोनों का रिलेशन जो तुम दोनों डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा r फैक्टोरियल बनेगा। r फैक्टोरियल 24 का मतलब की हो गया r की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट r, आप गल कर रहे हैं n। हुण जो r की वैल्यू तो कितनी है 4 है, तो n की वैल्यू कितनी होएगी ये पुट कर लो, ठीक है जी। या ये पुट कर लो एज विश है जिद मर्जी पुट कर लो उतो तो की है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। n फैक्टोरियल n माइनस r मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल और 35 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24 है ना। तो ये भी थोड़ा लंबा जा रहा है तो इन्ना तो करना पैना, हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो, n दी वैल्यूज पुट करके देख लो है ना। तो डी ऑप्शन इस राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखो जी की दिता होया है, कहते टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट, कहते 4 डिजिट के इधर किन्ने नंबर होंगे जिहदे विच अगर आप गल करिए
विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 ਜਿਹੜਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ डिविजिबल नहीं होगा। देखो टोटल डिजिट अपने कोल किन्ने हुंदे ने 10 डिजिट हुंदे ने। 10 डिजिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ਦੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी हो सकता है क्योंकि अपने कोल नंबर 5 ਦਾ डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 5 और 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ कुछ भी हो सकता है क्योंकि जेकर बाय चांस 5 आ गया ਜਾਂ 0 आ गया फिर तो अपने कोल दिक्कत आ जानी है। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ डिजिट रह जाते हैं 8 डिजिट रह जाते हैं। ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ कुछ भी आ सकता है ना 10 ਦੇ 10 डिजिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ भी आ सकता है। तो बस ये अपने कोल आंसर आ गया विच इज़ ए ऑप्शन 7200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखो जी की दिता हुआ है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये किन्ने डिवाइजर्स होंगे किनू छड्ड के 1 एंड n नू छड्ड। ठीक है किनू छड्ड के 1 एंड n नू छड्ड के। ठीक है हुण डिवाइजर्स आपां ने इहदे विच चैक करने ने। तो जदों भी डिवाइजर्स कढदे हुन्ने आ ठीक है तो हमेशा आपां की करदे हुन्ने आ सब तो पहला डिवाइजर्स कढण दे लई हमेशा पहला प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन आपां नूं करनी पैनी है दैट इज़ 38808। देखो सब तो पहला कितने जाएगा 2 ते जाएगा दैट इज़ 19404। ठीक है फिर 2 ते जाएगा दैट इज़ 9702। ठीक है उस तो बाद फिर कितने जाएगा 2 ते जाएगा दैट इज़ 4851। ठीक है हुण 2 ते इन्हें जाना बंद कर देना 3 के उपर भेज देने 3 के उपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3 के उपर भेजोगे तो 1617। ठीक है फिर 3 के उपर भेज के देख लें तो मेरे को चला गया 53279 पे चला गया। ठीक है उस तो बाद मैंने लगता हूँ 3 ते जाऊगा क्योंकि ऐड करके 3 नहीं बन रहा। हूँ ये 4 5 6 7 7 7 49 40 हाँ 7 के उपर चला जाऊगा दैट इज़ 77 है ना। फिर 7 ते चला गया मतलब 11 11 तो यदि प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो मतलब जो नंबर तुम इतने देख रहे हो ये नंबर की इक्वल है मेरे को 2 की पावर 3 3 की पावर 2 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1 की इक्वल है। ठीक है तो हुण ये नंबर ऑफ वेज मेरे को किन्ने होणगे मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स मेरे को किन्ने होणगे हमेशा इदा ही कढ़िया करो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जिन्नियां इन्हां दियां पावर्स ने उन्हां सारियां पावर्स दे विच 1 1 ऐड कर दो 2 + 1। ठीक है जी फिर 2 + 1 और फिर 1 + 1 सारियां पावर्स दे विच 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा है ना 4 3 12 12 3 ते नाल 2 ना मल्टीप्लाई। ठीक है तो 72 आ गया बट ये चीज़ का ध्यान रखो इन्होंने क्या एक्सैप्ट 1 एंड हुण 72 भी थोड़े को ऑप्शन च अवेलेबल हैगी है बट आपाने उत्थे ये गलती नहीं करनी जल्दी जल्दी 72 आंसर नहीं लगाना। इन्होंने मैंशन करता कि 1 नूं छड्ड के और n नूं छड्ड के। ठीक है तो वो 2 डिवाइजर्स नूं जो तुसीं माइनस करोगे तो किन्ने डिवाइजर्स रह जाएंगे 70 दैट इज़ ए ऑप्शन। क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 तुहाडे सामने हैगा ये भी पूछा गया है कहते जेकर थोड़े को 5 नंबरस ने प्राइम इंटीजर्स ने दैन नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये अपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स कढ़ने ने। हुण देखो अपने को दिता होया ए बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी ई कहते जो तुम ये फैक्टर्स कढ़ोगे है ना ये वाले फैक्टर्स आएंगे तो कुछ नहीं है ना तो देख लो फिर अपने को की आंसर ये हो जाता है। हुण ये कहते इंकलूडिंग 1 नूं तो इंकलूड करना है बट जो इट सैल्फ नंबर है उन्होंने इंकलूड नहीं करना है। ठीक है तो देखो ये पावर 1 है तो मतलब मेरे को कितना हो गया 1 + 1 हो गया अगले की पावर 2 है उस तो अगले की भी पावर 2 है फिर पावर 1 है उस तो बाद फिर पावर की है 1 है। ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 2 8 8 9 72 तो टोटल मेरे को किन्ने बन गए 72। हुण 1 नूं तो मैंने इंकलूड करना है बट जो इट सैल्फ नंबर है उन्होंने इंकलूड नहीं करना। ठीक है तो मतलब -1 मतलब 71 तो मतलब कि ऑप्शन आ जाती है जी डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास और दिस टॉपिक ऑल्सो उस तो बाद अपना ये टॉपिक प्रॉपरली फिनिश है 100 क्वेश्चन। ठीक है और इस भी तुसी की करना है n की वैल्यू नू फाइंड करना है दैट इज़ NP3 + NCn - 2 दैट इज़ इक्वल टू 14n। हाँ जी तो इस किमें करांगे NP3 का मतलब की हो गया n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल। ठीक है NCn - 2 का मतलब की हो गया n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल और उस तो बाद मेरे ख्याल से नाल मेरे को आ जाएगा 2 फैक्टोरियल है ना और इक्वल टू दे विच कितना हो जाएगा 14n। तो हुण इहनूं सॉल्व करना पऊगा सॉल्व करके क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे तो मेरे को कितना बन जाता ऊपर मेरे को रह जाता है n n - 1 n - 2 है ना 3 वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा तो मेरे को रह जाएगा n n - 1 / 2 है जोड़ा उन्होंने आप उधर भेज दें
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ 28n। n ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 2n - 1 n - 2 प्लस n - 1 इज इक्वल टू 28। तो कैलकुलेशन करके सॉल्व करना पऊगा। जो एक होर मैथड है थोड़ा बहुत इसनों फैक्टोरियल वगैरह खत्म करने तो बाद n दी वैल्यूज़ नूं ही पुट कर लो, n दी वैल्यूज़ नूं ही पुट करके देख लो कि किहड़ी इहदे विच सैटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हुण आपां पहला ए ऑप्शन पुट करके देख लैंदे आ। ए ऑप्शन पुट करांगे तो मेरे कोल कितना बन जाएगा 2 4 3 प्लस 4 कितना बन गया 12 12 3 जा 36 36 एंड 4 मेरे को कितना हो गया 40 है ना। मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। n - 1 n - 2 n - 1 सही है भी डिवाइड में जो फैक्टोरियल। चलो देखियो ये की मिस्टेक है। ठीक है, आराम नाल हो जाना है, क्वेश्चन कैलकुलेशन है। ठीक है, नहीं तो फिर n की वैल्यू ये पुट करके देख लो। रियल असली आंसर जो मतलब राइट आंसर जो है इसका वो केड़ा है, ए ऑप्शन है। ठीक है जी, आराम नाल हो जाना है, ओनली कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो तो इतनी अपना ये टॉपिक कंप्लीट होंगे। आई विल ट्राइड कि कल मैथमैटिकल रीजनिंग वाला मैं कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर केड़ा स्टार्ट करना है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। शेयर ज़्यादा तो ज़्यादा कराया करो। ठीक है जी, फिर थैंक यू, टेक केयर।